Morning, dear students. Hello, this is Neha, your course teacher, and our course title is Principles of Agronomy, and course code and course number is EAS 5111. So today we will discuss about again the crop season part 3. Okay, so in our previous lecture we had discussed about the crop season according to the region, that something like temperate region and Indian agriculture region, which is known as Indian Meteorological Department, and then after that Tamil Nadu and south region. Okay, then and again we had seen some characteristics of crop season. So in this segment we will discuss the crop wise season. Okay, according to the crop, the which season is required for that particular crop, or as well as which season we can grow in the particular crop. Okay, so according to that classification we will discuss about the crop season. Okay, so let us see, we have first one which is crop wise season. So in crop wise we have first crop which is rice. Okay, so rice is a very major crop in our agriculture production, in our agriculture kharif crop production. Okay, because rice is a kharif crop. Okay, and as well as the rice is a main crop in our Chhattisgarh. That is why rice is a very important crop to understand how they are grown, what season is required, what temperature is required. Okay, so all over we will discuss in our another lecture, but this lecture we will discuss about the particular season which is required for rice. Okay, so let us see, the first one is the rice season. So rice is grown in different seasons during a year. ठीक है, सो राइस को हम अलग अलग सीजन में उगाते हैं एक साल में. सो बेसिकली हमारे छत्तीसगढ़ जो है वो बेसिकली क्या है, रेनफेड एरिया है. ठीक है, रेनफेड एरिया मतलब इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी रेनफॉल. ठीक है, रेनफॉल पे डिपेंड है. इरिगेशन के सोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम है. ठीक है, मतलब ट्यूबवेल्स हो गया, वेल हो गया, या पॉन्ड वगैरह हो गए, कैनल्स वगैरह हैं, वो बहुत कम अवेलेबल हैं हमारे, है ना. तो हम जो बेसिकली जो भी हमारे राइस की कल्टीवेशन हमारे छत्तीसगढ़ में होती है वो क्या होती है, रेनफेड एरियाज़ में बहुत होती है, या इरिगेशन सोर्सेज में भी होती है. ठीक है, बट अगर आपके पास इरिगेशन सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उस कंडीशन पे वी हैव 3 कैटेगरी विच इज़ अस, अमन एंड बोरो. Okay, so rice season in North India, which is West Bengal, we have 3 category, us, aman and boro. ठीक है, तो this is very important, you need to understand and you need to remember this every time question has been, and what is us season. Okay, how the ranges between the month of us season, like that. So आपको ये याद रखना है. अर्थ सीज़न क्यों होता है, वो हम जब मई टू सितंबर, मतलब मई में हम फर्स्ट ऑफ द मई में हम क्या करते हैं, राइस सीड्स की सोइंग करते हैं, और एंड ऑफ द सितंबर तक उसकी हार्वेस्टिंग होती है. दैट सीजन इज नोन एज अर्थ सीजन. एंड अगेन द अमन सीजन इज देन जून एंड जुलाई टू नवंबर एंड दिसंबर, विच इज नोन एज खरीफ सीजन. ओके, सो खरीफ सीजन को हम कह सकते हैं रेनफेड सीजन. ठीक है, जो रेनफेड मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जब बारिश होती है, वर्षा होती है, उस टाइम पे हम उगाते हैं. तो बेसिकली ये मेजर सीजन है जिसको हम अमन कहते हैं. ठीक है, तो अमन क्या होता है, जून जुलाई से लेके मतलब जून जुलाई में हम राइस की सोइंग करते हैं, राइस सीड्स की सोइंग करते हैं, और नवंबर और दिसंबर में हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब फसल की कटाई करते हैं. ठीक है, देन आफ्टर वी हैव लास्ट वन विच इज़ बोरो. सो बोरो जो होता है वो समर राइस के नाम से हम इसे जानते हैं. ठीक है, जब आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज समर राइस, तो यू शुड गिव द आंसर द बोरो राइस इज ऑल्सो नोन एज समर राइस, and the January to March range are duration of that particular rice season, that is known as boro rice. Okay, you should give the answer like January to May, sorry. Okay, and the boro rice also known as summer rice. Okay, so this is very important to know that what is us, aman and boro, because ये external आएंगे कभी वाइवा वगैरह में आपका, तो वो भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट इज़ द अस राइस एंड देन अमन राइस. तो ये जो रीज़न है मंथ का, ठीक है, सॉरी रीज़न नहीं, ये जो आपका सेक्शन है मंथ वाइज जो क्रॉप सीजन का, वो आपको याद रखना होगा. ओके,
एंड द सेकेंड इज वी हैव कॉटन। ठीक है, तो कॉटन भी एक मेजर क्रॉप है, इस वजह से हम कॉटन का सीजन देखते हैं। ठीक है, तो कॉटन में हमको 4 कैटेगरी है, जिसमें हम कहते हैं विंटर इरिगेटेड, देन समर, देन राइस फेलो, आफ्टर दैट रेन फेड कॉटन। ओके तो विंटर इरिगेटेड इज अगस्त टू सेप्टेम्बर सोइंग। ओके, अगस्त से सितंबर तक हम जब सोइंग करते हैं, दैट इज called that winter season for cotton crop, and the summer season is February to March। हम जब सोइंग करते हैं, that is called the summer season for that cotton crop, and the rice fallow to January to February sowing। ठीक है, मतलब राइस फैलो मतलब हम क्या करते हैं राइस के होने के बाद। ठीक है, अब जो जनवरी टू फरवरी में बेसिकली हम जनवरी में जो लगा रहे हैं मई तक के, वो क्या था, समर राइस था, मतलब बोरो राइस था, है ना। तो उस बीच में जब हम कॉटन की कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, या कॉटन का हम क्या करते हैं पौधा उगाते हैं, सोइंग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द राइस फैलो। ठीक है, मतलब राइस के बाद, राइस को फॉलो कर रहा है वो। ठीक है, आफ्टर दैट रेनफेड कॉटन, मतलब जो रेनफॉल पे डिपेंड हो वो वाला जो कॉटन जब हम उगाते हैं, विच इज़ सितंबर टू अक्टूबर तक, हम उसकी मिड अक्टूबर तक हम उसकी सोइंग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सितंबर टू मिड अक्टूबर अबाउट 33% जो रेनफॉल होता है वो उस बीच में होता है। ठीक है, आउट ऑफ टोटल रेनफॉल। तो हम उस सीज़न पे अगर हम कॉटन की सोइंग करते हैं तो दैट वुड बी कॉल rain-fed cotton season. Okay, the third one crop is sugarcane season. So sugarcane also the major crop in our agriculture production. So we have 4 category. Okay, so first is early season, second is mid season, and third is late season, and then after that special season. ओके, सो अर्ली सीजन इज़ अबाउट दिसंबर टू जनवरी, जब हम प्लांटिंग करते हैं शुगर केन की। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज अर्ली सीजन। एंड आफ्टर दैट मिड सीजन इज़ फेब्रुवरी टू मार्च प्लांटिंग जब होती है, दैट इज़ नोन एज मिड सीजन। एंड द अप्रैल टू मे द प्लांटिंग ऑफ शुगर केन इज़ नोन एज लेट सीजन। And the June to July the planting of sugarcane season is known as special season. Okay, so these season are very important to understand and very important to know that. Okay, so always remember that season, and especially rice आपको याद करना है, क्योंकि राइस जो है हमारे छत्तीसगढ़ का मेजर क्रॉप है, तो हमें हमेशा राइस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, then second is agronomic concept of growing season. Okay, so first is according to our crop season, and the second is agronomic concept of growing season। मतलब हमारा क्या कंसेप्ट है एग्रोनॉमिकली। ठीक है, वो उसके हिसाब से हम कैसे क्रॉप के सीज़न को डिवाइड किए हैं ये हम देखते हैं। सो एग्रोनॉमिकली द ग्रोइंग सीजन कैन बी डिफाइंड एज द पीरियड व्हेन द सॉइल वाटर रिजल्टिंग मेनली फॉर रेनफॉल इज फ्रीली अवेलेबल टू द क्रॉप। ठीक है, सो क्या होता है एग्रोनॉमिकली जो भी ग्रोइंग सीजन जो हम कह रहे हैं वो क्या है, एक ऐसा है जहाँ पे हम वाटर की जो अवेलेबिलिटी है ना, मतलब जो वाटर जो एक पाया जाता है रेनफॉल के जरिए, ठीक है, उसका जो वो कैपेसिटी है वाटर को होल्डिंग करने का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्रॉप के सीजन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो दिस कंडीशन अकर व्हेन द वाटर कंज्यूम बाय द क्रॉप इज इन इक्विबिरियम विथ रेनफॉल एंड वाटर स्टोरेज इन द सॉइल। ठीक है, तो ये कंडीशन कब फॉलो होगा या कब हमें दिखाई पड़ेगा, तब जब वाटर कंजप्शन है। ठीक है, जो वाटर कंज्यूम करेगा क्रॉप और जितना वाटर वो स्टोर करेगा अपने में। ठीक है, मतलब जितना उसने कंज्यूम करा, मतलब जिसने वाटर का उसने क्या कर लिया, उपयोग कर लिया। ठीक है, उसके साथ साथ जितने वाटर को उसने अपने पास होल्ड करके रखा है या सॉइल ने होल्ड करके रखा है। ठीक है, वाटर को क्या करा है, स्टोर करके रखा है। वो दोनों का रेशियो है ना, वो दोनों का रेशियो जब, मतलब वो दोनों का अनुपात, ठीक है, वो दोनों का अनुपात जब बराबर होगा, उस कंडीशन में भी हमें क्या दिखाई पड़ेगा, ये कंसेप्ट जो है, क्या कंसेप्ट, एग्रोनॉमिक कंसेप्ट जो है वो फॉलो होगा। ठीक है, तो एग्रोनॉमिक कंसेप्ट क्या है, period when the soil water resulting mainly from rainfall is fairly available to the crop।
मतलब वो क्रॉप के लिए हमेशा अवेलेबल होगा, उसके ग्रोइंग सीजन से लेकर वेजिटेटिव प्रोडक्शन से लेकर उसके फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग तक उसको जो पीरियड में जो वाटर अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, क्रॉप की, तो वो उसका रेशियो और उसका जो कंज्यूम करने का रेशियो वो जब इक्वल होगा, उस कंडीशन पे हमारा ये कंसेप्ट क्या होगा, कामगर होगा, ठीक है, मतलब यूजफुल होगा या रन करेगा हम कह सकते हैं, ठीक है। सो द ग्रोइंग सीजन फॉर अ रेन फेड क्रॉप इन्वॉल्व्स 3 डिफरेंट पीरियड्स ड्यूरिंग विच द सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस डिपेंड ऑन द रेनफॉल रिसीव्ड, ठीक है। तो क्या होता है, जितने रेनफॉल रिसीव्ड करता है, ठीक है, रेनफेड एरिया में क्या होता है, जितना बारिश होती है, हम क्यों कहते हैं कि वाटर जो है उसको लॉस कम करो या वाटर वेस्टेज कम करो, क्योंकि जितनी बारिश होती है उसको हम वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं फॉर द एडवर्स कंडीशन, ठीक है, मतलब ऐसा कंडीशन जब आए, जब वाटर नहीं हो, ड्रॉट की कंडीशन आ जाए, सूखा हो जाए और उस टाइम हमारे क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट हो, तो हम जो हार्वेस्टिंग वाटर करा है, सॉरी वाटर हार्वेस्टिंग जो हमने करा है, स्टोरेज जो हमने करा है, वहाँ से हम उसे क्या करें, जो रेनफॉल सॉरी जो रेनी सीजन के बाद जब उसे वाटर का रिक्वायरमेंट हो तो हम उसे अवेलेबल करा पाएँ, ठीक है। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं या ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं, उस सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं अगर मौजूद हो तब ये एग्रोनॉमिक कंसेप्ट जो है वो कामगर होता है, ओके। सो द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज एग्रोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ द growing season, okay। So we have the three category, which is pre-humid period, humid period and post-humid period, okay। So we take first one to discuss pre-humid period, okay। So what is pre-humid period? During this period the precipitation will always remain lower than the potential evapotranspiration for the corresponding period. This period corresponds to the sowing period of the crop. Sowing can be done when the precipitation during the week is greater than about 0.5 PET, okay। So the question has been arised that what is PET, that is the potential evapotranspiration, okay। So what is potential evapotranspiration? So the water losses by the two things, which is the plant surface, okay। So water losses from the plant surface, which is known as transpiration through the vascular system, and the water losses through the earth surface, which is as well as soil, okay। So that combined we know that इवेपोट्रांसपिरेशन, ओके। मतलब क्या होता है, जो पत्ती की जो सतह होती है, ठीक है, पत्ती की सतह से जो पानी का क्या होता है, पानी का लॉस होता है, ठीक है, पानी जो है वो वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है, वो वाली जो प्रक्रिया है। और जो वाटर लॉस किससे होता है, हमारी सॉइल से होता है, सोलर रेडिएशन से होता है, ठीक है, जो वहाँ से जो इवापोरेट होता है वाटर, ठीक है, इवापोरेशन वाष्पोत्सर्जन जो होता है, ये जो दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, मतलब वाटर लॉसेस फ्रॉम द लीफ सरफेस एंड द वाटर लॉसेस फ्रॉम द soil surface or earth surface, okay, that combinedly called us what, evapotranspiration, okay। So PET is known as potential of evapotranspiration is always less than the precipitation rate, okay। So that would be called, the sowing can be done when the precipitation during the week is greater than about 0.5 PET, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट रेंज, जो सोइंग जो भी है वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन रेट है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रेट मतलब क्या कहेंगे हम, जो रेनफॉल वहाँ पे हो रहा है, ठीक है, बेसिकली हमें अभी यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का अर्थ हम समझ सकते हैं कि जो रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, उसका जो रेट है वो इवेपोट्रांसपिरेशन रेट से क्या है, ज़्यादा है जब, ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, प्री ह्यूमिड पीरियड होता है वो, ठीक। एंड द सेकेंड इज what is the second is what, humid period, okay। तो humid period क्या होता है, during this second period the precipitation remains higher than PET,
ठीक है। तो जो इस पीरियड में क्या होता है, प्री ह्यूमिड पीरियड में क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन रेट है, मतलब रेनफॉल से हम इसका अंदाज़ा हम रेनफॉल से लेते हैं इसका अर्थ, ठीक है। क्योंकि प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे फ्रॉस्ट हो गया, ओला हो गया, ओला जो गिरता है, पाला जो गिरता है, ठीक है, जो बर्फबारी होती है, स्नो वगैरह, ये सारे फॉर्म्स है प्रेसिपिटेशन के, ठीक है। इसके साथ साथ रेनफॉल जो है मेजर फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का। तो जो यहाँ पे हमको क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट है हमारे क्रॉप के लिए, तो रेनफॉल नहीं कह के हम प्रेसिपिटेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेशन सेकेंड पीरियड विच इज़ नोन एज ह्यूमिड पीरियड, ठीक है। तो क्या होता है, ह्यूमिड पीरियड में जो प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पीईटी से, वो क्या है, पीईटी क्या है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है। अब इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, उस कंडीशन पे क्या होता है, ह्यूमिड रीजन हम उसे कह सकते हैं। बट प्री ह्यूमिड रीजन में हम एक रेंज डिवाइड कर दिए हैं। कौन सा रेंज, मतलब जो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से 0.5 जो परसेंट है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है हमेशा। तो उस रीज़न को हम क्या, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, प्री ह्यूमिड पीरियड बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, द क्रॉप इन दिस पीरियड, मतलब ह्यूमिड पीरियड में मैं बता रही हूँ आपको, द क्रॉप इन दिस पीरियड विल बी इन एक्टिव वेजिटेटिव एंड फ्लावरिंग फेज एंड द वाटर रिक्वायरमेंट विल बी एट इट्स पीक, ठीक है। तो इस पीरियड में, कौन से पीरियड में, ह्यूमिड पीरियड में, ह्यूमिड पीरियड में क्या होता है, बहुत ही एक्टिव ग्रोथ होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, ठीक है। अब वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ ये होता है कि जो हमारे जो भी हम सीड सोन करते हैं अपने फील्ड पे, ठीक है, तो जो भी हम सीड सोन करते हैं उससे क्या होता है, प्रिम्यूल निकलता है। प्रिम्यूल मतलब एक छोटी पत्तियां निकलती, फिर उस पत्तियों से शाखाएं बनती है, तने बनते हैं, ठीक है। तो वो जब हरी भरी पत्तियां जब निकलती है, उस ग्रोथ को हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है। तो क्या होता है, ह्यूमिड पीरियड में वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्लावरिंग फेज होता है वो, ठीक है, मतलब फूल खिलने का फेज होता है। फूल खिलने के बाद फल लगता है ना, वी ऑल नो दैट कि फूल खिलते हैं उसके बाद फल लगता है। तो इस कंडीशन के बाद क्या होता है, वाटर का रिक्वायरमेंट होता है इस कंडीशन पे, वो पीक पीरियड पे होता है, ठीक है, मतलब बहुत ही एसेंशियल होता है, हम कह सकते हैं क्रिटिकल पीरियड होता है ये ह्यूमिड पीरियड में। वाटर रिक्वायरमेंट किसी भी क्रॉप की क्रिटिकल स्टेज हम कह सकते हैं वाटर रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। And after, at the end of this period, water balance is on the positive side and the water storage in the soil is on the increase since the rainfall is higher than the water needs, ठीक है। तो ये होता है आपका ह्यूमिड पीरियड। एंड आफ्टर दैट वी हैव लास्ट वन विच इज पोस्ट ह्यूमिड पीरियड। अब पोस्ट ह्यूमिड पीरियड क्या होता है, ह्यूमिड पीरियड के बाद आता है, ठीक है, मतलब ह्यूमिड से पहले प्री ह्यूमिड, फिर ह्यूमिड पीरियड, फिर पोस्ट ह्यूमिड पीरियड। सो पोस्ट ह्यूमिड पीरियड क्या होता है, दिस पीरियड फॉलोज द ह्यूमिड पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस इज अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल ड्यू टू द यूटिलाइजेशन बाय द क्रॉप प्लांट्स। द क्रॉप्स विल ऑल्सो मेक यूज ऑफ रेनफॉल रिसीव। दिस period usually coincide with maturity stage of the crop, ठीक है। सो पोस्ट ह्यूमिड पीरियड होता है, इसमें वाटर जो भी होल्ड करके रखे होते हैं, जो हम प्री ह्यूमिड पीरियड में होल्ड करके रखते हैं ना वाटर, ठीक है, तो उस वाटर को क्या करता है, कंज्यूम करता है प्लांट, यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, है ना, और वेजिटेटिव ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, ठीक है। कब तक, जब तक हम क्या करते हैं, मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंच जाता है क्रॉप, तब तक वो सारा जो क्या होता है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जो वाटर अवेलेबिलिटी होती है, किस में होती है, सॉइल में होती है ना। तो जो वाटर अवेलेबिलिटी होती है सॉइल में, उसको वो ग्रेजुअली रिडक्शन होने जाता है, मतलब धीरे धीरे उसकी कमी होने लगती है, जो स्टोर्ड वाटर होता है। अब कमी क्यों होती है, फॉर द यूटिलाइजेशन बाय द क्रॉप प्लांट, ठीक है, क्रॉप प्लांट जो है उसको कंज्यूम करता है, ठीक है, इस वजह से वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दैट पीरियड इज नोन एज पोस्ट ह्यूमिड पीरियड, ओके। देन वी हैव टाइप्स ऑफ ग्रोइंग पीरियड।
So we have four types of growing period. First one is normal period. So in this type, rainfall is excess during the humid period. At the end of pre-humid period, when precipitation is higher than the 0.5 PET, showing the crops are taken up. This type of growing season is prevalent in semi-arid tropics. ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा. ठीक है, आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो प्रेसिपिटेशन होता है वो 0.5 पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन से क्या होता है, ज़्यादा होता है. ठीक है, उससे ज़्यादा होता है, वो होता है नॉर्मल पीरियड. जो बेसिकली हम कह सकते हैं, जो हमने रेंज याद करा है, जो हमने रेंज पढ़ा है ना प्री ह्यूमिड का, ह्यूमिड पीरियड का, वही रेंज है ये, है ना. तो आपको कैसे याद रखना है, रिलेट करना है आपको. ठीक है, आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो एक दूसरे से रिलेट करेंगे. ठीक है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है. आप 2-3 बार रेगुलरली इसको रीड करेंगे तो आपको आराम से ये रेंज जो है वो याद हो जाएगा. ठीक है, सो देयर इज़ नो नीड for stress how to remember that thing. Okay, so this type of growing season is prevalent in semi-arid and arid tropics. Okay, so and the second is intermediate type. First one is a normal type, second one is intermediate types. Okay, so they are the types of growing season. Okay, so always remember, no one is confused that what is the types of growing season. Okay, so intermediate type is what? The precipitation is lower than the PET all round the year. The growing season is limited to that the period when rainfall is in excess of PET, 0.5 PET. Only drought hardy crops like pearl millet, castor, etc. can be grown. Dry farming is highly risky. ठीक है, मतलब पानी जब कम होता है, प्रेसिपिटेशन ही कम होगा तो ऑब्वियस है पानी कम हो रहा है, मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं हो पा रहा है ना, तो उसको हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं. ठीक है, तो बहुत कम क्रॉप है जो ड्राई लैंड फार्मिंग में हम जैसे लेते हैं, विच इज़ नोन एज पर्ल मिलेट. ठीक है, जिसमें रागी, कोदो, कुटकी, ठीक है, इस टाइप के मिलेट्स आते हैं, मोटे अनाज आते हैं. ठीक है, और क्या आता है, कैस्टर आता है. ठीक है, कैस्टर ऑयल आप सुने होंगे ना, अरंडी का तेल, जो ऑयल जहाँ से हम निकालते हैं. ठीक है, तो ये सारे जो क्रॉप है ये हम शोन करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग में, बट दैट क्रॉप वुड बी अ रिस्की फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग. ठीक है, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए हम उसे ड्राई लैंड फार्मिंग में ले सकते हैं, बट दैट वुड बी अ रिस्की पॉइंट. ओके, and the third is all year round humid. So in this type the precipitation is more than PET all round the year, indicating the moisture sufficiency for cropping. This type occur in high rainfall areas and mostly perennial crops are raised. ठीक है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, मतलब वाटर स्टोरेज कैपेसिटी सॉइल की अच्छी होती है, वाटर स्टोर करके रखते हैं, तो यहाँ पे पेरेनियल क्रॉप्स ले सकते हैं, मतलब जो साल दर साल लगातार चलते रहे, फैलो, मतलब खाली ना पड़ी रहे ज़मीन. ठीक है, मतलब वाटर के क्या होता है, वाटर का कमी की वजह से हम क्या करते हैं, सिर्फ खरीफ सीजन में जो रेनफेड एरिया रहता है वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ खरीफ सीजन में क्रॉपिंग होती. क्यों? क्योंकि वाटर ही नहीं होता, वाटर के अनदर रिसोर्सेज ही नहीं होते, है ना, इस वजह से खरीफ सीजन में ही क्रॉपिंग होती है वहाँ पे. बट जो इंटरमीडिएट टाइप में ऐसा होता है, सॉरी ऑल ईयर राउंड ह्यूमिड टाइप में क्या होता है कि क्रॉप हम पेरिनियल क्रॉप रेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाईली रेनफॉल एरियाज होते हैं. ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज ऑल ईयर राउंड ड्राई. सो द प्रेसिपिटेशन इज लोअर देन, ड्राई से हमको समझ आ रहा है कि प्रेसिपिटेशन जो है उसका रेंज कितना, 0.5 पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन से कम है, तो हम वहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं, ऑल ईयर राउंड ड्राई सीजन. ठीक है, सो थ्रू आउट द ईयर क्रॉपिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस एरियाज. तो दिस टाइप ऑफ ग्रोइंग सीजन इज फाउंड इन एक्सट्रीमली एरिड एरिया, मोस्टली द डेजर्ट. मतलब राजस्थान के जो एरिया हैं वो डेजर्ट एरिया में आते हैं, और वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन जो रेंज होता है वो 0.5 पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन से क्या होता है, कम होता है. ठीक है, तो ये रेंज आपको याद रखना पड़ेगा. दे आर टाइप्स ऑफ क्या, ग्रोइंग सीजन, विच इज फर्स्ट वन इज नॉर्मल, देन इंटरमीडिएट टाइप, देन ऑल ईयर राउंड ह्यूमिड, एंड द लास्ट वन इज ऑल ईयर राउंड ड्राई. Okay, then the fluctuation in crop yields depend on the following condition.
ओके। सो जो फ्लक्चुएट होता है क्रॉप यील्ड में, कभी ज़्यादा या कभी कम, तो वो फॉलोइंग रीजन की वजह से होता है. सो लेट अस सी द लेंथ ऑफ रेनी सीजन, दैट इज फ्रॉम सोइंग टू द एंड ऑफ द रेन्स, the quantity and distribution of rains during the pre-humid and humid period, and the excess rainfall during humid period should go to soil storage. It may causes waterlogging and water lodging system. So the amount of rainfall received during post-humid season may supplement the soil moisture during maturity. This point is very important. Please highlight that line. The amount of rainfall received during post-humid season may supplement the soil moisture during maturity. ठीक है, तो ये जो मैच्योरिटी के टाइम पे क्या है, ये हमें सप्लीमेंट्री प्रोवाइड कराते हैं ह्यूमिड रीजन में, पोस्ट ह्यूमिड रीजन में. ठीक है, सो दिस मे फेवरेबली इन्फ्लुएंस द yield. In India, 4 cropping seasons have been identified by IMD in dry farming area. ठीक है, तो क्रॉपिंग सीजन क्या हमने देखा था, खरीफ, रवि, जायद और समर. ठीक है, दे आर द क्रॉपिंग सीजन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द IMD विच इज इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ओके, सो ये था. उसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू दी IMD सीजन, मतलब इंडियन मीटरोलॉजिक सीजन के हिसाब से एक चार्ट रेडी करा हुआ है, वो मैंने मेंशन करा है. ओके, सो दे आर द 5 कॉलम. सो फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, द सेकेंड इज द नेम ऑफ सीजन, देन ड्यूरेशन, आफ्टर दैट वाटर नीड फॉर रेनफॉल, एंड देन what crop should be required that particular area. Okay, so first in short duration, so duration up to 10 week, and the water needs for rainfall is 75%, and very short duration crops are there. Okay, and the जैसे tomatoes वगैरह हो गए, they are very short duration crop. Okay, so they are mentioned that ranges of short duration crop. After that, medium duration. So the medium duration is up to 10 to 15 weeks, and the water need for rainfall is 75%. So medium crops, ड्यूरेशन क्रॉप्स विथ इंटरक्रॉप्स आर देयर. ठीक है, मतलब जिनका एक मीडियम रेंजेस होता है, जैसे चना हो गया. ठीक है, ग्राम जो एक मीडियम रेंज का क्रॉप है. ठीक है, तो हम उसको इंटर क्रॉप में ले सकते हैं, मतलब किसी और क्रॉप, किसी एक मेजर क्रॉप के साथ हम मेज के साथ सपोज हम चना उगा सकते हैं. ठीक है, एंड द एक्सटेंट मीडियम ड्यूरेशन विच इज ड्यूरेशन बिटवीन अप टू 15 to 20 weeks, and the water need for rainfall is 75% also, and the medium duration crops followed by short duration crops if soil type is suitable. ठीक है, अगर soil type उस particular crop के लिए suitable है, तो हम ये दो crop को combine कर सकते हैं एक्सटेंडेड मीडियम ड्यूरेशन में. ठीक है, मतलब कौन दोनों क्रॉप को, शॉर्ट ड्यूरेशन और मीडियम ड्यूरेशन क्रॉप को हम इंटर क्रॉपिंग में ले सकते हैं, अगर वहाँ की जो सॉइल है, ठीक है, वहाँ की जो मिट्टी है उस क्रॉप के लिए क्या है, सुटेबल है उस कंडीशन पे. ठीक है, देन लास्ट इज लॉन्ग ड्यूरेशन विच इज रेंजेस बिटवीन 20 to 30 weeks, and the water is needed from the rainfall is 75%, and medium duration crops followed by short duration crop. ठीक है, तो ये मीडियम ड्यूरेशन क्रॉप जो है हम ले सकते हैं. उसके बाद जो भी मीडियम ड्यूरेशन के बाद जो हमारे पास समय बच जाएगा, ठीक है, उस बीच में हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लग सकते हैं, और उनको हम कंबाइनली लॉन्ग ड्यूरेशन एज अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप ले सकते हैं फॉर द बेटर यील्ड एंड प्रोडक्शन. ओके, देन लास्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ सीजन ऑन चॉइस ऑफ क्रॉप. So let us see what is the effect of season. So season influences the crop selection to a greater extent as it decides the growth and establishment of the crop. The weather condition prevailing during a season totally governs the crop production. The fluctuation in the crop yield depends on the length of the rainy season, the quantity and regularity of distribution of rainfall, and the amount of rainfall received after the rainy season. The climatic factor like precipitation, wind, solar radiation, light and thermal energy, okay, is included in solar radiation. Temperature, atmospheric air, and its pressure prevailing in a season, they are all the weather elements like precipitation, wind, solar radiation, they are climatic weather elements. Okay, so always remember.
So atmospheric air and its pressure prevailing in a season very greatly influences the crop growth, establishment and yield, as discussed in the earlier chapter on climatic factor affecting the क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, सो क्रॉप प्रोडक्शन में हमने अर्लियरली इसको डिस्कस करा हुआ है. आफ्टर ये जो था ये इफेक्ट ऑफ सीज़न है, मतलब क्या चॉइस होनी चाहिए हमें अकॉर्डिंग टू द सीज़न क्रॉप के, ये है. तो सीज़न के क्रॉप में ये इफेक्ट होते हैं. ठीक है, मतलब हमें क्रॉप का जो चॉइस है वो अकॉर्डिंग टू दी सीज़न करना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्टली वी शुड नो दैट व्हाट सीज़न इज रिक्वायर्ड दैट पर्टिकुलर क्रॉप. ओके, दैट इज़ व्हाई आई मेंशन देयर the IMD season, which is Indian Meteorological Department, that short duration, medium duration and the extended medium duration, then the long duration. This is very essential to know that the production of agriculture and what crop is chosen for that particular season, that should be very essential. Okay, so today is enough for that chapter and that is enough, okay, for crop season. Okay, हमने ये end कर दिया है. So thank you very much. Till then, be safe, take care.